Hello everyone. I welcome all of you on the behalf of Student Group of Schools online classes, the second lecture of circular motion. So yesterday we have discussed what is actually the circular motion, what are the definitions and basic parameters of circular motion like angular displacement, angular velocity and angular acceleration. Now today, and we have seen also few relations of kinematics of circular motion, and the relations were valid for uniform angular acceleration alpha, and we have written all those, we have seen all those relations yesterday only. Today I would like to have a question first, then I will get into the detail of concepts. We will do a couple of questions. Write the first one. First question: a particle starts from rest. A particle starts from rest and has angular acceleration and has angular acceleration 5 radian per second square. 5 radian per second square. Find the angular velocity. Find the angular velocity at t equals to 2 seconds. At t equals to 2 seconds, and angular displacement and angular displacement from 0 to 2 seconds, from 0 to 2 seconds, and number of turns and number of turns from 0 to 2 seconds. I will switch on your chat. You can attempt this question. Okay. Meanwhile, I will also solve the given question. See the solution. What is given? A particle starts from rest. Starting from rest means initial omega is 0. Okay, and has angular acceleration alpha. Alpha equals to 5 radian per second square. So first thing we will have to calculate the omega final for t equals to 2 seconds, which is omega initial plus alpha t. Omega initial is 5 minus alpha is 5 into 2. So omega final is what? Minus 5 radian per second. This is the first answer. Okay. Omega final. I think I have made a mistake here. Sorry. Initial omega is what? 0. Because starting from rest. Okay. So 0 plus 5 into 2. Very simple. Actually, I did another problem. 10 radian per second. Now see the next. Second part. Angular displacement from t equals to 0 to 2 seconds. Angular displacement means theta. Theta equals to omega I into t plus half alpha t square. Initial omega is 0 and alpha is given 5
time they are given 0 to 2 seconds. So the theta is what? 10 radian. This is the angular displacement. Now they are asking the number of turns. For number of turns we know that in one turn the particle or object makes 2 pi रेडियन. एक सर्कुलर टर्न में 2 पाई रेडियन एंगल बना लेता है ना. यहाँ पे कितने टर्न हो जाएंगे यहाँ देख लीजिए. नंबर ऑफ टर्न्स अगर n पूछा जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 10/2 pi. दिस इज द आंसर. Okay, so 3 parts we have and we solve all these 3 parts. Now see the next problem. At t equals to 0, it is given at t equals to 0, omega equals to 10 pi radian per second. Alpha is also given minus 5 pi radian per second square. You have to find what? Find theta, that is angular displacement, and number of turns. Number of turns from of first part 0 to 2 second और second part में है 0 to 6 second. 0 to 6 second. इसको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा सॉल्व. देखिए जरा ध्यान से. अल्फा नेगेटिव है. आप याद करो जब भी ऐसा कभी भी मोशन होता था लीनियर मोशन, मान लो पार्टिकल को v दिया और लेकिन इस पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन इस पे नेगेटिव है, तो धीरे धीरे ये रुकता चला जाएगा और किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. और फिर उस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ हैविंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी द पार्टिकल स्टार्ट्स कमिंग बैक. ये सिचुएशन हमने लीनियर काइनेमेटिक्स में स्टडी किया है. यहाँ भी वैलिड है. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो अभी क्लॉकवाइज कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव अल्फा का मतलब क्या है कि धीरे धीरे इसका ओमेगा डिक्रीज होता चला जाएगा. ओमेगा डिक्रीज होते 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 मान लो कि कुछ टर्न के बाद यहाँ पे ओमेगा 0 हो गया. ओमेगा 0 हो गया, लेकिन अल्फा इसके पास क्या है? पार्टिकल के पास ओमेगा था क्लॉकवाइज, लेकिन अल्फा इसके पास है एंटी क्लॉकवाइज. एक बार ओमेगा 0 होगा और फिर वापस से ये दूसरे डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा. तो जब भी कभी यहाँ पे रिटार्डेशन होता था ऑब्जेक्ट में और आपसे पूछा जाता था नेट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो आप सबसे पहला काम क्या करते थे? फाइंड करते थे कि कौन सा जो है सबसे पहला काम क्या करना होता था कि किस टाइम इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है. क्योंकि जब टोटल डिस्टेंस की बात होती थी तो जिस जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है उन पॉइंट्स पे पूरी की पूरी जर्नी को हम ब्रेक कर देते थे और अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस में फाइंड करते थे डिस्टेंस और फिर उन सब का मॉड्यूलस लेके ऐड. ये काम हमने किया हुआ है लीनियर काइनेमेटिक्स में. यहाँ सर्कुलर काइनेमेटिक्स में क्या है वो देखो. सबसे पहले अल्फा नेगेटिव जब भी होगा तो आप सर्च करोगे टाइम. You will search the time at which the omega becomes 0. मतलब फाइनल ओमेगा 0, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है? 10 पाई माइनस अल्फा टी. अल्फा इज माइनस 5 पाई इंटू टी. इसका मतलब टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये अपना सेंस ऑफ रोटेशन विल चेंज. मतलब द पार्टिकल विल चेंज
the particle will change its sense of rotation. सेंस ऑफ रोटेशन मतलब कि अगर पहले से क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. सेंस ऑफ रोटेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल अब क्या करेगा, अपना सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करेगा. तो पहले पार्ट को अगर आप देखो, फर्स्ट पार्ट, तो थीटा क्या होता है, फॉर्मूला थीटा का इनिशियल ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो पहले पार्ट में जब आप थीटा फाइंड करोगे देखते क्या आता है, 0 to 2 सेकेंड में थीटा इक्वल्स टू इनिशियली ओमेगा एज 10 पाई 2 सेकेंड मतलब 2 माइनस हाफ इंटू 5 पाई इंटू 2 स्क्वायर, यू विल गेट व्हाट 10 पाई रेडियन. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 पाई रेडियन का. 10 पाई रेडियन से आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स. तो पहले पार्ट में तो कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है क्योंकि पहली बार वेलोसिटी जीरो हो रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और नंबर ऑफ टर्न्स लिख दोगे यहाँ से क्या 10 पाई अपॉन 2 पाई. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फॉर 0 to 2 सेकेंड इज 5. ओके, सो फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो. कम टू द सेकेंड. इन द सेम क्वेश्चन they are asking you the displacement, angular displacement theta for 0 to 6 सेकेंड. अब 0 से 6 सेकेंड के लिए आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो थीटा टोटल आप क्या लिखोगे, आपको ये तो पता चल गया कि पहले 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक सेम सेंस ऑफ रोटेशन और इसके बाद क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन. दोनों 0 से लेकर 2 तक एक बार कैलकुलेट करोगे, फिर इसका मॉड्यूलस लोगे थीटा 2 से लेकर के 6 सेकेंड. तो थीटा 0 to 2 तो अभी हमने फाइंड किया है, थीटा 0 से 2 मॉड्यूलस के साथ ही लिख देता हूं मैं. अभी हमने फाइंड किया, ये आया था कितना 10 पाई. और थीटा 2 से लेकर के 6 है ना, 2 से लेकर के 6, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. अभी हमने पीछे देखा है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड ओमेगा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. तो यहाँ पे 0 ही रहने देंगे. 0 इंटू टाइम 4 सेकेंड प्लस की जगह यहाँ पे माइनस करना होगा हाफ अल्फा इज 5 पाई और टाइम कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर. अब इसका मॉड्यूलस है ना, अगर मॉड्यूलस आप नहीं लेते हो तब देखेंगे कि क्या होता है. पहले इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा कितना, दिस इज 40 पाई, दिस इज माइनस ऑफ 40. ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई यही कर रहा है कि अगर पहले ये क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. हमें उससे क्या मतलब, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्न्स. ये नहीं पूछा गया कि क्लॉकवाइज में कितना टर्न है, एंटी क्लॉकवाइज में कितना टर्न है. तो मैं इसीलिए मॉड्यूलस यहाँ पे लगा रहा हूँ, मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न बताना है. इसका मतलब दूसरे सेंस में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 45 है ना. तो टोटल कितना हो गया, टोटल थीटा इज 10 पाई प्लस 45 दैट इज 50 पाई. नंबर ऑफ टर्न्स क्या बताओगे, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी, पहले वाले में यहाँ पे देख लो n1 इज 10 पाई. n1 इज व्हाट, पहले 0 to 2 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, तो 10 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई यू विल गेट 5. एंड इन सेकेंड केस n2 will be what, 45 divided by 2 pi, this is 20. So total number of turns n1 plus n2 will be 25 number of turns. इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा जब आपको अल्फा नेगेटिव दिया होगा प्रॉब्लम में. कम टू द नेक्स्ट हेडिंग.
लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स रिलेशन देखेंगे हम लीनियर वेरिएबल्स में लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स में रिलेशन देखते हैं। लीनियर वेरिएबल क्या क्या हो जाता है आपके पास बताओ, है ना? डिस्टेंस हो जाता है ना? डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और एंगुलर वेरिएबल क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बीच हम रिलेशन देखेंगे। तो पहला रिलेशन जो होगा अपने पास, लाइक इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक यहाँ से ले लेता हूँ एक शेप। कोई भी ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। अभी किसी ए पॉइंट पे थोड़े टाइम में बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना? तो इसका जो ये आर्क का लेंथ है, अगर ये आर्क लेंथ मैं एस लिखता हूँ और ये थीटा जो यहाँ पे बना रहा है वो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से आप एस को क्या लिखोगे? इक्वल टू आर टाइम्स, ये आपको पता है पहले से। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, सो एल विल बी आर थीटा। एल यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? सॉरी, एस इज व्हाट? पाथ लेंथ या फिर आर्क लेंथ, है ना? तो थीटा और आर अगर रेडियस है, इसका रेडियस आर, तो क्या लिखोगे? एस इक्वल्स टू आर थीटा। इसके बाद सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट रिलेशन को डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, फर्स्ट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ds बाय dt। तो ds बाय dt को क्या लिखोगे? d बाय dt इंटू d बाय dt आर थीटा। अब यहाँ पे ds बाय dt क्या है? दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी है, लाइक ए पे v, है ना, तो वो v है, दिस इज v इक्वल्स टू r कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल नॉट बी वेरिंग, d थीटा बाय dt। अब आपको एक चीज पहले से पता है, सिंस वी नो that d theta by dt, rate of change of angular displacement, is nothing but the angular velocity. So from here you can write v equals to r omega, v equals to r omega। दूसरा रिलेशन आ गया। आप देखो पहला लीनियर वेरिएबल क्या है यहाँ पे? डिस्प्ले ये पाथ लेंथ, और एंगुलर वेरिएबल क्या है? थीटा। एक रिलेशन आ गया। दूसरा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में रिलेशन हमने फाइंड किया। थर्ड रिलेशन हम देखेंगे। अब जो फाइनल रिजल्ट ये अपने पास बन के आया है, इसको डिफरेंशिएट करें, मतलब डिफरेंशिएटिंग द थर्ड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड को अगर मैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, मतलब कि क्या है अपने पास? v इक्वल्स टू r omega, so you will differentiate this again dv by dt with respect to time, I am doing here time, dv by dt, r is constant, you can keep this outside,
डी ओमेगा बाई डी टी, तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity d omega by dt is nothing but the angular acceleration. So here the linear acceleration a is written as r alpha. ये समझने वाली बात है। इतना हमने इन तीन रिलेशंस को स्टडी किया। कौन कौन से रिलेशन को स्टडी किया हमने? तो लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच में क्या रिश्ता है। लाइक इफ आई से s equals to r theta and then v equals to r omega and then a equals to r alpha. So ये रिलेशंस आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे, ये बहुत ज्यादा यूज होगा पूरे के पूरे रोटेशनल मोशन में, है ना, रोटेशनल डायनामिक्स में। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच यूजफुल, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द फिजिक्स। Next, we will talk about what? A very basic definition. If I say alpha, alpha is what? Omega final minus omega initial upon time taken. Okay, this is the basic definition of alpha. Alpha is what? The change in angular velocity. Alpha is what? Change in angular velocity with respect to the change in time, with respect to the time taken. Okay, किसी given time duration में ओमेगा में कितने चेंज आए और दैट टाइम टेकन का रेशियो हमें क्या प्रोवाइड करता है? अल्फा. अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सीलरेशन. अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करता हूँ। देखिए, अगर मैं ऐसा कहूँ कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज if alpha positive, that means final angular velocity is greater than the initial angular velocity, that is omega increases. ये हमें पहले से भी पता है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता था तो वेलोसिटी बढ़ती थी, इंक्रीज होती थी। यहाँ पे ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, कोई इशू नहीं। तो यहाँ क्या आप कह सकते हो कि ओमेगा भी बढ़ रहा है और अल्फा भी इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा एंड अल्फा बोथ, अल्फा इज पॉजिटिव and omega is increasing. So we will conclude here that the direction of alpha and omega is same. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम। मतलब अगर मैं बोलूं कि अल्फा क्लॉकवाइज है, इफ अल्फा इज डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज क्रॉस, देन ओमेगा का डायरेक्शन भी क्रॉस ही होगा। ठीक, अब दूसरी बार मैं ऐसा कहूं कि अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? दैट इज the final angular velocity is lesser than the initial angular velocity. That means the omega decreases. ओमेगा डिक्रीज होता चला जाएगा। और जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या आप कहते हो ऐसा कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट सेंस, है ना? ओमेगा and alpha points or is directed in opposite sense, is directed in opposite direction, ना? ऐसा लिख देता हूँ, बाकी आपके समझने के लिए है ये opposite direction, है ना? जब उल्टा भी आप इसका कंक्लूड कर सकते हो, ओमेगा इंक्रीज होने का मतलब अल्फा
पॉजिटिव है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। अगर ओमेगा के लिए आप बोलते हो कि क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब अल्फा उल्टे डायरेक्शन में है मोशन के, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव। ये चीजें आप लीनियर कॉन्सेप्ट्स जो लीनियर काइनेमेटिक्स के थे जो हमने एनालाइज किए थे उससे भी मैच करके देख सकते। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन छोटा सा बेसिक सा लिखते हैं। A particle completes a circle. A particle completes a circle. Particle completes a circle of radius 10 meter in 5 seconds. 10 meter in 5 seconds with constant omega. With constant omega. Then find omega. क्विक आंसर चाहिए मेरे को, 1-2 सेकंड में आंसर दीजिए। A particle completes a circle of radius 10 centimeter in 5 seconds. What is omega? ओमेगा क्या हो जाता है, ओमेगा को क्या लिखते हैं आप, है ना, ओमेगा इज व्हाट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई, और टाइम टेकन क्या लिखेंगे हम, 5। सो दिस इज द आंसर विद यूनिट रेडियन पर, ओके, रेडियन पर सेकंड। ये तो ओमेगा आ गया। मान लो आपसे v भी पूछ लिया जाता, व्हाट इज द वेलोसिटी v, आप क्या लिखोगे, ओमेगा टाइम्स r, ओमेगा इज 2 पाई बाय 5 और r क्या है 10 मीटर, सो यू विल गेट द आंसर हियर 4 पाई मीटर पर सेकंड। तो होप कि आपको ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम इजीली समझ में आया होगा। हम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और यू कैन से अ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं कि मैरी गो राउंड करके, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, आप मेले वगैरह में जाते होंगे तो MARIGO, मैरी गो राउंड, है ना, कि ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा सर्कुलर सा प्लेट होता है, चेयर्स लगे होते हैं इनपे ना, और बच्चों को पेरेंट्स को इस पे घुमाते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे एक प्लेट कंसीडर करता हूँ, इसमें चेयर्स लगे हुए हैं 2 अलग अलग रेडियस के। मान लो एक चेयर जो लगा हुआ है वो RB रेडियस पे एक पूरा का पूरा सर्कल में चेयर लगा हुआ है, और दूसरा एक थोड़ा RA मान लो इनसाइड, ठीक है, और इसके पेरीमीटर पे एकदम से लगा हुआ है जाके चेयर। दूसरे नंबर ऑफ चेयर्स आर देयर एट द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पेरिफेरी, ओके। एक तो ये ए है, एक तो ये ए है देख लो, और दूसरा एक बी, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो इसमें क्या होता है, अब देखना, if I take the shape then it will be better to define। इसमें क्या है कि एक स्मॉलर रेडियस के सर्कल्स में चेयर्स होते हैं,
मैं इस रेडियस को मान लेता हूं, इस रेडियस को मान लेता हूं आर ए, और एक फाइनल इसके बाहर के पेरिफेरी पे चेयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसके रेडियस में मान लेता हूँ आर बी, और ये जो चेयर्स है इस सर्कुलर पेरीमीटर के रेडियस में, वो तो क्या है, आर ए रेडियस से घूमेंगे, और जो बाहर है वो आर बी रेडियस से घूमेंगे। क्या होता है इसमें मेरीगो राउंड में, वो समझिए कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करते हैं कि ये जो है ना घूमने वाला एंगल, ये जो घूम रहा होता है ये प्लेट, ये ओमेगा से घूम रहा होता है। ओमेगा से अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम, मान लो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठे हो जो कि ओमेगा से घूम रहा है, आपके साथ जितने लोग हैं वो सारे इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा से ही घूम रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैरीगो राउंड में आप ये कह सकते हो, पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ, जो ए का ओमेगा है, ये ए पार्टिकल मान लो, ये कोई बी पार्टिकल मान लो, ए का ओमेगा जो है वो बी के ओमेगा के इक्वल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे रेडियस देखो बी का ज्यादा है ए के रेडियस से, ठीक। थर्ड पॉइंट वी कैन कंक्लूड हियर, सिंस वी नो दैट v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स आर, और ओमेगा दोनों का सेम है, तो v क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल विद द रेडियस ऑफ द revolving body. So here you will say that vb will be greater than va, मतलब जो b की वेलोसिटी होगी, जो b की वेलोसिटी होगी vb, और जो a की वेलोसिटी होगी va, इसमें vb बड़ा होगा va से। ये ऐसा कहा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि आप और मैं मान लो किसी एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, और जो सेंटर है, प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है, और जो सेंटर है प्लेटफॉर्म के, वहां से आपका डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, और मेरा मान लो 3 मीटर है। तो जब ये रोटेट करेगा तो मैं और आप दोनों के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ओके। और जैसा कि आपका और मेरा डिस्टेंस है ना, रेडियस ऑफ सर्कलमेंट अलग अलग है, इसका मतलब हमारी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, तभी जाकर के ये सर्कुलर मोशन का v इक्वल्स टू ओमेगा आर रिलेशन वेरीफाई हो पाता है। ठीक है, बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है, सीधे। ओके, सो वेट अ सेकंड,